بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا اردو 101 کا کوئز نمبر 1 کریں گے۔ آج کے کوئز میں آپ لوگوں کو اپروکسیمیٹلی 60 MCQs بتاؤں گی۔ یہی MCQs آپ کے کوئز میں بھی آئیں گے اور انہی MCQs کو آپ نے اپنے مڈ ٹرم ایگزامس کے لیے بھی لازمی پریپیئر کرنا ہے۔ ابھی آپ لوگ جب ویڈیو دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ اپنا کوئز نمبر 1 اٹیمپٹ کیجئے گا، اور جب آپ کا مڈ ٹرم ہوگا تو آپ اس وقت اردو ہمارے چینل کے اردو 101 کے سارے لیکچرز بھی میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، وہ آپ لوگ لیکچر سن لیجئے گا، اور جو کوئزز ویڈیوز ہوں گے ان کو آپ نے لازمی دیکھ کے جانا ہے۔ ان میں سے آپ کا کافی سارا پیپر ریپیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلا ہمارا جو MCQs ہے کہ لفظ مدارات کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں لوگ آئے، ہم نے اتنی خاطر مدارت کی، تو مدارت سے ہی لفظ نکلا ہے مدارات، یعنی کہ خاطر تواضع کرنا، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو آگے ہر اسٹڈی گروپ میں شیئر بھی لازمی کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے، اور جو چینل پہ نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ چینل کے ہوم پیج پہ جائیں، پلے لسٹ کے آپشنز میں جائیں اور وہاں سے آپ اپنی مرضی کے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا خیر، آگے ہم لوگ چلتے ہیں۔ ہمارا جو اگلا MCQs ہے، فیض احمد فیض ڈیش کے شاعر تھے۔ فیض احمد فیض کلاسیکیت کے شاعر تھے۔ ویسے ان کا تھوڑا انداز رومانوی بھی تھا، رومانس سے ریلیٹڈ بھی یہ لکھتے تھے، لیکن کلاسیکیت جو ہے نا وہ انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، تو کلاسیکیت کے شاعر ہیں۔ اس کے بعد ناصر کاظمی کے توسط سے میر تک پہنچے۔ ناصر کاظمی فراق گورکھپوری تھے۔ یہاں پہ انہوں نے نا ٹائپنگ مسٹیک کی ہوئی ہے، یہ اصل میں لفظ فراق گورکھپوری، ٹھیک ہے۔ ناصر کاظمی فراق گورکھپوری کے تھرو میر تک پہنچے تھے، ٹھیک ہے۔ کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ اچھا، آپ لوگوں کے جو ہینڈ آؤٹ ہے اس میں جو غزل ہے اس میں ہر شعر کے بعد ہر شعر کے اینڈ پہ آتا ہے کے بعد یہ والا لفظ آتا ہے، تو آپ اپنے پاس پیج پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ کے بعد جس غزل کی جو ہے وہ ردیف ہے وہ کون سا ہے، وہ فیض احمد فیض کی غزل ہے، ٹھیک ہے۔ کے بعد یہ کس کی غزل ہے؟ فیض احمد فیض کی غزل ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ناصر کاظمی کا شاعری کی اہم خصوصیات کون سی ہیں؟ ناصر کاظمی ماضی پرست تھے، وہ ماضی کے بارے بہت زیادہ بات کرتے تھے، تو ان کی شاعری کے اندر ہمیں ماضی پرستی نظر آتی ہے۔ ادھر تقاضے ہیں مصلحت کے، ادھر تقاضائے درد دل ہے، زبان سنبھالیں کہ دل سنبھالیں، اسیر ذکر ڈیش سے پہلے، اسیر ذکر وطن سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ لوگوں کا جو شعر آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، وطن ہے یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر۔ ناصر کاظمی ڈیش میں پیدا ہوئے، ناصر کاظمی امبالہ میں پیدا ہوئے تھے، امبالہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ کتاب دست صبا کس شاعر کا شاہکار ہے؟ دست صبا فیض احمد فیض نے لکھی ہے، تو فیض احمد فیض ہی اس کا رائٹ آنسر ہے۔ ستم کی رسمیں بہت تھیں لیکن نہ تھیں تیری انجمن سے پہلے، سزا خطائے نظر سے پہلے، اتاب جرم سخن سے پہلے۔ تو یہ والا جو شعر ہے یہ فیض احمد فیض کا، یہ بھی آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ جس غزل کا ردیف ہے نا سے پہلے، ہر شعر کے آخر پہ آ رہا ہے سے پہلے، یہ والا جو غزل ہے یہ کس کی ہے؟ فیض احمد فیض کی ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے ردیف اپنے مائنڈ میں رکھیں، تو کوئی بھی شعر آ جاتا ہے اس کے اینڈ پہ سے پہلے یا کے بعد ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا کس شاعر کا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ناصر کاظمی انفرادی نوعیت کے شخص تھے جو بطور ڈیش دنیا کو دیکھتے تھے، یہ بطور مورخ دنیا کو دیکھتے تھے، تو مورخ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ طارق بن زیاد نے ڈیش مارکے میں کشتیاں جلا دی تھی، اندلس کے مارکے میں۔ اسپین پہ جب انہوں نے حملہ کیا تھا، تب انہوں نے اسپین جب فتح کیا تھا تو کشتیاں جلا دی تھی، تو اسپین اندلس میں آتا ہے، تو اندلس اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد ہے ناصر کی شامل نصاب غزل میں جلانے، آنے، نبھانے، اٹھانے اور بنانے شعری اصطلاح میں کیا ہے؟ یہ قافیہ ہیں۔ ان کی جو غزل ہے وہ آپ لوگ جب پڑھیں گے آپ لوگوں کو وہ آئیڈیا ہو جائے گا۔ جو ورڈ ہوتا ہے نا، جیسے ہر شعر کے آخر پہ ایک ہی لفظ آ رہا ہوتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا سے پہلے کے بعد، جب بھی شعر ایک ختم ہوگا تو اس کے اینڈ پہ سیم لفظ آ رہا ہوتا ہے،
उसको हम लोग बोलते हैं रदीफ। और जो मिलते जुलते अल्फाज होते हैं जो कि आवाज में भी मिलते जुलते होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, काफिया बोलते हैं। लफ्ज फिगार का क्या मानी है? फिगार का मानी होता है जख्मों से भरपूर। तो आप लोगों के जो हैंडआउट में अल्फाज मानी होते हैं उनको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। मैं जिनकी राह देखता हूँ रात भर, वो रोशनी दिखाने वाले क्या हुए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने ज्यादा आपके ये एमसीक्यूज आते हैं इससे रिलेटेड, जिस गजल के जिस शेर के आखिर पे आ रहे हैं क्या हुए, ये वाला जो रदीफ है जिस गजल में, वो किसकी गजल है? वो नासिर काज़मी की गजल है, और ये गजल है भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या हुए क्या है? ये नासिर काज़मी की गजल है। 20वीं सदी में पहले रोमानवियत और फिर डैश ने उर्दू अदब को मुतासिर किया। तरक्की पसंदियत पहले रोमानियत थी 20वीं सदी में हमें नजर आती थी, लेकिन बाद में फिर हमें तरक्की पसंदियत ज्यादा नजर आती थी। तरक्की पसंद तहरीक डैश के नतीजे में हिंदुस्तान आई, मार्क्सिज्म के नतीजे में हिंदुस्तान आई। मार्क्सिज्म यहाँ पे इसका राइट आंसर है। फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ डैश है। इन्होंने सबसे पहला जो अपनी शायरी जो इनका जो पूरा मजमुआ है वो है नक्शे फरियादी। ठीक है, फैज अहमद फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? नक्शे फरियादी। रावलपिंडी साजिश केस में फैज पर कौन सा इल्जाम लगाकर कैद किया गया था? इश्तराकियत पसंद होने का इन पे इल्जाम लगाया गया था, तो इश्तराकियत पसंद इसका राइट आंसर है। फैज अहमद फैज ने नज़म ए रोशनियों के शहर में किस शहर को मुखातिब किया गया है? कराची को रोशनियों का शहर उन्होंने कहा था, और स्टिल आज तक कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है। फैज के यहाँ डैश जैसी अनायत पाई जाती है। मीर तकी मीर जो थे ना, उन्होंने जब अपनी गजलें लिखी थी तो उसमें भी हमें अनायत नजर आती है, तो फैज अहमद फैज के यहाँ भी हमें अनायत नजर आती है, तो यहाँ पे मीर तकी मीर इसका राइट आंसर है। किस सदी में इंसान बहुत तेजी से मादियत पसंदी की तरफ बढ़ रहा था? ये इसमें है हमारा राइट आंसर 20वीं सदी में। ठीक है, 20वीं सदी में इंसान मादियत परस्ती की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। ये शेर किस शायर का है? ये आप हम तो बोझ हुए जमीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए। ये फिर क्या हुए वाला शेर है, तो ये किसका? नासिर काज़मी का है। ये आप तो बोझ, ये दोबारा से वही रिपीट हो गया। आगे फैज अहमद फैज के यहाँ जदीदियत और डैश का इम्तजाज मिलता है। फैज अहमद फैज के यहाँ जदीदियत और क्लासिकियत का इम्तजाज मिलता है। जदीदियत भी थी उनकी शायरी में और क्लासिकियत भी हमें नजर आती है। आगे हम लोग चलते हैं। फैज अहमद फैज किस रिसाले की अदारत करते रहे? तो वो इमरोज की जो है ना वो अदारत, असल में रिसाले की जो अदारत है, तो इन एक रिसाला इनका होता था कारवां। वैसे तो वो है, लेकिन यहाँ पे अब जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें इमरोज ही इसका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके हैंडआउट में जितना कुछ मेंशन उसमें इमरोज ही है। वैसे इनकी जो एक थी ठहरे, वो एक आगे भी आ रही है, उसका एमसीक्यूज भी आ रहा है, वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। वो एक इदारा था, तो उनसे एक रसाला शाया होता था कारवां, तो ये उनकी भी इदारत वगैरह करते थे। फैज अहमद फैज डैश के शायर है, क्लासिकियत के शायर हैं, हमारा पहले भी हो चुका है। नासिर काज़मी की शायरी पर फाकी बदमानी, फराग गोरखपुरी और डैश के असरात नजर आते हैं। मीर तकी मीर के असरात नजर आते हैं। नासिर काज़मी की हमें शायरी पे मीर तकी मीर के बहुत ज़्यादा हमें असरात गहरे नजर आते हैं। नासिर काज़मी की शायरी पे डैश के असरात देखे जा सकते हैं, मीर तकी मीर के असरात देखे जा सकते हैं। नून मीम राशिद के असलूबियात में डैश की इंतहा मिलती है, फारसियत की इंतहा मिलती है। नून मीम राशिद ने फारसी में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा है। फैज अहमद फैज ने शायरी की इब्तिदा लाहौर के किस प्लेटफॉर्म से की थी? तो एक लाहौर का प्लेटफॉर्म था जिंदा दिलाने लाहौर। ठीक है, वहीं से एक रिसाला शाया हुआ करता था कारवां। ठीक है, तो फैज अहमद फैज ने जिंदा दिलाने लाहौर से जो है ना अपनी शायरी की इब्तिदा की थी, तो ये इसका राइट आंसर है। उन्हें सदियों ने ना भूलेगा जमाना, यहाँ जो हादसे कल हो गए हैं। यहाँ पे इस शेर में एक तो हाँ तकसीम हिंद का यहाँ पे जिक्र है। ठीक है,
वैसे इन्होंने जो ढाका सकूत के बारे में भी इन्होंने लिखा था, बट इन्होंने पाकिस्तान जब तकसीम होता तो उसके बारे में भी इन्होंने लिखा था। तकसीम हिंद जो है ना वो इसका राइट आंसर है। आप लोग इसका हैंड आउट में भी पढ़ेंगे ना, लेक्चर्स में भी आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा इसका। फैज अहमद फैज का ताल्लुक उर्दू अदब की किस तहरीक से था? तरक्की पसंद तहरीक से था इनका ताल्लुक। इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक के साथ खुद को जोड़ा था। फैज अहमद फैज ने रिसाला डैश की इदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। रिसाला था अदब लतीफ़, ठीक है, अदब लतीफ़ एक रिसाला था, उनकी इन्होंने अदालत के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। यहाँ पे अदब लतीफ़, अब ये इसका राइट आंसर है। वहाँ पे जो था ना वो इमरोज़ उसके वो रहे थे, उसका पता नहीं क्या नाम था, आप लोगों के हैंड में मेंशन है, बट उसकी इन्होंने इदारत नहीं की थी। अदालत इन्होंने अदब लतीफ़ की थी। फराह गोरखपुरी डैश शायर थे, गजल गो शायर थे, ये गजलें लिखा करते थे, तो गजल गो शायर इसका राइट आंसर है। नासिर काज़मी की शायरी में डैश का इस्तारा बहुत इस्तेमाल हुआ, रात का इस्तारा। इन्होंने अपनी शायरी के अंदर रात को बतौर मुस्तारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। वो कौन लोग हैं मेरे इधर उधर, वो दोस्ती निभाने वाले क्या हुए, यहाँ पे भी क्या हुए है, तो ये किसका शेर है? नासिर काज़मी का है। लफ्ज तैग के क्या मानी है? तैग के मानी होता है तलवार, ये आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग 9th-10th में भी पढ़ा होगा। तैग का मतलब होता है तलवार। अमारतें तो जल कर राख हो गई, अमारतें बनाने वाले क्या हुए, ये भी नासिर काज़मी का शेर है, जिसके एंड पे क्या हुए आ रहा है। वो सुबह आते आते रह गई कहीं, जो काफिले थे आने वाले क्या हुए, ये भी नासिर काज़मी का शेर है। फैज अहमद फैज की तसनीफ मीज़ान डैश का मजमुआ है। मीज़ान तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, तो मीज़ान के अंदर तनकीदी मज़ामीन मौजूद है, ये इसका राइट आंसर है। फैज अहमद फैज का इंतकाल डैश में हुआ, 1984 में हुआ, 1984 में। नज़म ढाका से वापसी पर किस शायर ने लिखी? ये भी फैज अहमद फैज ने लिखी थी, नज़म ढाका से वापसी पर। नासिर काज़मी डैश परस्त शायर थे, ये माजी परस्त शायर थे, नमाजी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। पाकिस्तान 1947 में बन गया था, लेकिन डैश तक उसे कोई आइन नहीं मिल सका। 1956 तक इसे कोई आइन नहीं मिला था, 1956 में इसको फिर आइन दिया गया था। तो 1956 तक कोई आइन नहीं था, फिर 1956 में मिल गया था। जिंदा दिलानी लाहौर के नाम से अदबी मजलिस ने कौन से रिसाले का इजरा किया? कारवां, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। ये आप तो बोझ है जमीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए, ये किसका शेर है? नासिर काज़मी का शेर है। फैज अहमद फैज की तमाम तर शायरी मजमुआत को किस नाम से यकजा किया गया है? फैज अहमद फैज ने जितनी भी शायरी लिखी है उन सबको इकट्ठा करके एक ही किताब के अंदर महफूज कर लिया गया। उस किताब का नाम रखा गया नुस्खा हाय वफा, ठीक है। तो इस मजमूए का क्या नाम है? नुस्खा हाय वफा, ये इसका राइट आंसर है। अकबर ने कौम की इस्लाह का बेड़ा डैश के अंदाज में उठाया, ये इसका जो राइट आंसर है ना, ये मुझे नहीं मिला। मैंने काफ़ी सर्च किया है, तो आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट जिसको इसका राइट आंसर मिल जाए तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वैसे मुझे जो लगता है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो सरजनिश होगा, कि उन्होंने सरजनिश के अंदाज में कौम की इस्लाह का बेड़ा उठाया था। बट फिर ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ये कहीं से मिल जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे भी लाजमी बता दीजिएगा। नासिर काज़मी रेडियो लाहौर से कौन सा प्रोग्राम करते थे? इसका भी मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने इसका सर्च किया है तो सफीना नज़म और सफीना गुल दोनों ही आंसर्स आ रहे थे। टाइम भी शॉर्ट था, तो आप लोगों में से अगर किसी को सही एग्जैक्ट इसका आंसर हैंडआउट में से मिल जाता है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये 2 MCQs हैं जिसका आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता देना है। आगे चलते हैं। वो सुबह आते आते रह गई हैं, जो काफिले थे आने वाले क्या हुए, ये नासिर काज़मी का शेर है, ये भी हो चुका हमारा पहले, ये अगेन वही शेर है। अच्छा, नासिर काज़मी की शायरी पे डैश के असरात देखे जा सकते हैं, मीर तक की मीर के असरात देखे जा सकते हैं, ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं। हम के ठहरे इतनी मुलाकातों के बाद फिर बनेंगे आशना कितनी मदारातों के बाद, ये फैज अहमद फैज का शेर है, जिसके आखिर पे के बाद आ रहा है। फैज अहमद फैज ने महबूब और डैश दोनों को एक साथ चलाया है, महबूब और माशरत को एक साथ चलाया इन्होंने, ठीक है। तो माशरत यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नासिर काज़मी की शायरी का एक नुमाया वस्फ डैश के वाक़यात का बयान है।
انہوں نے جنگ آزادی کے بارے میں بھی لکھا ہے اور سقوط ڈھاکہ کے بارے میں بھی لکھا تھا. ٹھیک ہے, تو خیر واقعات جو لکھے گئے ہیں زیادہ تر وہ جنگ آزادی کے بارے میں, تو جنگ آزادی اس کا رائٹ آنسر ہے. ٹھیک ہے, یہ تھے ہمارے آج کے سارے ہمارے ایم سی کیوز. اس میں سے 2 ایم سی کیوز میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگوں نے سرچ کر کے بتا دینے, وہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر دیجیے گا. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے حامی ناصر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں سے راضی ہوں. میرے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا کہ میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہر کام میں آسانیاں پیدا فرمائے, میرے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سارے حل فرمائیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.